پاکستانی بحری حدود ناقابل تسخیر بنانے کی جانب بڑی پیش قدمی. چین میں بننے والی ہنگور کلاس آبدوز پاک بحریہ میں شامل جدید سونار سسٹمز، اسٹیلتھ ڈیزائن اور زیر آب طویل آپریشنز کی صلاحیت والی آبدوز میں جدید ٹارپیڈوز اور اینٹی شپ کروز میزائلز نصب. بابر 3 ایٹمی میزائل بھی آبدوز پر نصب ہو سکتے ہیں. کمیشننگ کی تقریب میں صدر مملکت آصف علی زرداری کی شرکت جدید آبدوزیں جارحیت کو روکنے اور سمندری تجارتی گزرگاہوں کی سلامتی یقینی بنائیں گی. نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا تقریب سے خطاب. پاکستان کے ایران امریکہ تنازعات کے حل کے لیے فریقین سے براہ راست روابط برقرار. آبنائے ہرمز کی بندی سے پوری دنیا متاثر. امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور تجارتی راستہ بحال ہوگا. ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ. توانائی، تجارت اور اشیاء کی ترسیل کے لیے آبنائے ہرمز کو کھلا رکھنا ضروری قرار. اسحاق ڈار کا یورپی یونین کی نائب صدر کاجا کال سے ٹیلی فونک رابطہ. یورپی یونین کی نائب صدر نے امن کے لیے پاکستان کے مثبت کردار کو سراہا. اسحاق ڈار کا خطے میں مکالمے اور سفارتکاری کے فروغ کے عزم کا اعادہ. ایران امریکہ جنگ دوبارہ چھڑنے کے خدشات. عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں. دوران ٹریڈنگ برینٹ کروڈ 4 سال کی بلند ترین سطح $125 فی بیرل کی حد کو چھو گیا. پاکستان میں پیٹرول ڈیزل مہنگا ہوگا یا نہیں، حکومتی فیصلہ کل سامنے آئے گا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت $140 تک جانے کا دعویٰ کر دیا. امریکی وزیر خزانہ کے مشورے تیل مہنگا ہونے کے ذمہ دار قرار اور کہا کہ بحری ناکہ بندی ایران کو تقسیم کرنے کی سازش ہے. دشمن معاشی دباؤ، اندرونی تقسیم اور میڈیا مہمات کے ذریعے ایران کو توڑنا چاہتا ہے. قوم کا اتحاد ہی بحران کا واحد حل ہے. ایران امریکہ کشیدگی میں اضافے سے دوبارہ جنگ کے خدشات. ایشیا اور یورپی سٹاک مارکیٹس میں شدید مندی. پاکستان سٹاک ایکسچینج میں دوران کاروبار 5000 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ. پاکستان اور ایران کے درمیان کثیر الجہتی تعاون کے فروغ پر اتفاق. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک اور ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ایرانی سفیر کا خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار پر اظہار تشکر. امن کے لیے پاکستان کی کاوشیں قابل قدر قرار دیتی. Anymore with 18-hour flights every time we want to see a piece of paper. We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. But when you have to fly 18 hours every time you want to have a meeting. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران سے ٹیلی فونک مذاکرات جاری ہونے کا دعویٰ. ایران کی ناکہ بندی دانشمندانہ فیصلہ قرار. میڈیا سے بات چیت میں امریکی صدر نے کہا کہ جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کرنے ایران کو بے بس شکست تسلیم کرنا ہوگی. متحدہ عرب امارات کی جانب سے اوپیک سے علیحدگی کے فیصلے کی تعریف. اقدام سے تیل کی قیمتوں میں کمی کی پیش گوئی. امریکہ کا طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرلڈ فورڈ آئندہ چند روز میں مشرق وسطی سے بلانے کا فیصلہ. امریکی سینٹ کام نے جیرلڈ فورڈ کی تصاویر جاری کر دیں. اقدام سے امریکہ کے خطے میں فائر پاور کم ہو جائے گی. ایران نے جنگ کے دوران USS جیرلڈ فورڈ کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا تھا. امریکی فوج کا ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار. کارروائی کا مقصد مذاکرات میں ڈیڈ لاک کا خاتمہ اور مطالبات منوانا ہوگا. امریکی ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق حملوں کی نئی لہر میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. امریکہ کا ایران کے خلاف پہلی بار 1700 میل کی رینج کے ہائپرسونک میزائلز تعینات کرنے کا فیصلہ. امریکی میڈیا کے مطابق سینٹ کام نے ڈارک ایگل میزائل مشرق وسطی بھیجنے کی درخواست کی. مقصد ایران میں اندر تک
मिसाइल लॉन्चर्स को टारगेट करना है। आवाज तेज मिसाइल रास्ता बदलकर हदफ को टारगेट करने की सलाहियत रखता है। वफाकी वज़रा की मार्का हक के कम सिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के। अमरीकी फौज का ईरान के खिलाफ मुख्तसर और ताकतवर हमलों का मंसूबा तैयार। ईरान का दोबारा जंग छेड़ने पर अमरीकी जंगी बेड़े डबोने और मज़ीद फौजियों को हलाक करने का इंतबाह। मुशीर सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई का दुश्मन को खौफजदा कर देने वाले नए हथियार जल्द मंज़िर आम पर लाने का ऐलान। वाज़ेह किया कि अमेरिका के लिए सबसे कम महंगा ऑप्शन ईरान के 10 निकात को तस्लीम करना है और अमरीकी अफवाज ने ईरानी समंदरी हदूद की तरफ पेशकदमी की तो फौरी और फैसला कुन रद्द अमल देंगे। आबनाए होर्मुज़ खुलवाने के लिए अमरीका नया आलमी इत्तेहाद बनाने के लिए सरगर्म है। अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में अमरीकी सिफारत खानों को हिदायत की कि मुतालिका ममालिक को एक नए मुआहदे के लिए राग़िब करें जिसका नाम मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट रखा गया। ईरानी अफवाज ने पहली बार अराश नामी न्यू जनरेशन वन वे कामिकाज ड्रोन्स तेहरान के इनकलाब स्क्वायर में इज्तिमा के दौरान अवाम के सामने पेश किए। वीडियो में देखा जा सकता है कि ड्रोन्स देखकर ईरानी अवाम का जोश और जज्बा बढ़ गया। ईरान का ज्यादातर आला अफज़ूदा यूरेनियम अब भी इस्फहान के न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में मौजूद है जिसे गुज़श्ता साल अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। सरबरा आलमी एटमी तवानाई एजेंसी का दावा। राफेल गरोसी के मुताबिक ज़ेर ज़मीन सुरंगों में मौजूद यूरेनियम से ईरान कई एटमी हथियार तैयार कर सकता है। 5:30 बजे अफगान बॉर्डर की तरफ से एक गोला अंगोराडे के इलाके में एक घर पर जा गिरी थी जिसमें 5 अफराद जख्मी हो गए थे। उनमें से 2 कम सिन बच्चियां हैं और एक छोटा बच्चा और साथ में 2 खवातीन शामिल हैं। अफगान तालिबान रजीम का जनूबी वजीरिस्तान के इलाके अंगूर अड्डा में शहरी आबादी पर हमला। घर पर मात्र गोला गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जख्मी हो गए। 3 बच्चे भी इन जख्मी में शामिल हैं। 2 दिन में जख्मी होने वालों की तादाद 8 हो गई है। इलाका मकीनों के मुताबिक सरहद पार से गोलाबारी में आम शहरी खुसूसन बच्चे निशाना बन रहे हैं जिससे खौफ की सूरत हाल बरकरार है। अफगान तालिबान की तरफ से पाकिस्तान की सिविल आबादी को मुसलसल निशाना बनाने से जाहिर होता है कि इस फितने का इंसानियत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान का अफगान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज डी मार्च हवाले किया। वफाकी वज़रा की मार्का हक़ कम सिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद के घर पर आमद। वफाकी वज़रा ने कम सिन मुजाहिद इर्तज़ा अब्बास शहीद को ख़िराज अक़ीदत और वालिद लेफ्टिनेंट कर्नल ज़हीर अब्बास के आज़म और हौसले को सलाम पेश किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत का पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया मुस्तनद हक़ाइक़ के सामने गैर मुअस्सर। पहलगाम ड्रामे के बाद भारतीय साजिश के तहत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम तराशी का सिलसिला शुरू किया गया था जिसे इंतहा पसंद हिंदू हलकों और गोदी मीडिया ने बगैर किसी सबूत के आगे बढ़ाया। पहलगाम ड्रामे की मुबैना हलाक शुदगान की तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार शुदा पाई गई। आलमी मीडिया ने भारतीय फौजी अफसर और उसकी अहलिया की हलाकत का बेबुनियाद दावा मुस्तरद करके उन्हें जिंदा करार दिया। माहिरीन के मुताबिक मोदी हुकूमत पाकिस्तान मुखालिफ बयानी से भारतीय सिक्योरिटी निज़ाम की संगीन खामियों को छुपाने में नाकाम रही। वज़ीर आज़म अपना घर अपनी जमीन स्कीम के इजरा की इस्लामाबाद में तकरीब 1 करोड़ रुपए तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब हो सकेगा। वज़ीर आज़म के मुताबिक पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए की फाइनेंसिंग मुख्तस कर दी गई है। आइंदा 4 वर्षों में हदफ 5 लाख घर करार दे दिए। मुल्क में नॉर्मल पासपोर्ट की डिलीवरी की मुद्दत 21 दिन से कम करके 14 दिन कर दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में बिजनेस पासपोर्ट के इजरा से मुताल्लिक़ उमूर पर काम तेज करने की हिदायत जारी।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कच्चे के इलाके में 23 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान कर दिया। मरीम नवाज का 14,500 एकड़ सरकारी अराजी कच्चे के लोगों को देने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी रोड का अचानक दौरा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी हमरा थे। बियाती मंसूबे और दीगर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। FW हुक्काम के मंसूबे की रफ्तार, मयार और तकमील के हवाले से मुराद अली शाह को ब्रीफिंग। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त की समाअत। मरकजी अपीलें सुनने के बाद जजेस चेंबर में चले गए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इस पर कोई ऑर्डर जारी करेंगे। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने आलमी इदारे सेहत की जानिब से कराची की लैब को प्री क्वालिफाई करना पाकिस्तान के लिए एजाज़ करार दिया। मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक लैब के क़याम से पाकिस्तानी अद्वियात की एक्सपोर्ट को फ़रोग़ मिलेगा। WHO मैच्योरिटी लेवल 3 का हुसूल हदफ करार। कराची में नैब की तफ्तीश की जद में आने वाले शादी हॉल को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सील करना शुरू कर दिया। SBCA का तमाम अफसरान को नैब की दी गई फहरिस्त पर फौरी कार्रवाई का हुक्म। नैब कराची में 700 मुबैना गैर कानूनी शादी हॉल की तहकीकात कर रहा है। कराची जिला बस्ती के अवाम के लिए खुशखबरी के बरसों ताखीर का शिकार करीमाबाद अंडरपास मुकम्मल, शहरियों के लिए जल्द खोला जाएगा। लाहौर के इलाके दिल्ली गेट और पार्क व्यू सिटी में FIA ने कार्रवाई के दौरान हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्विस नेटवर्क को पकड़ लिया। 5 मुल्जिमान गिरफ्तार, 1 करोड़ रुपए से जायद बरामद। रावलपिंडी के इलाके टैक्सला में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत के तलाई जेवरात चुराने वाले गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिम शहरी के घर पर रंगो रोगन का काम कर रहा था। मौका पार कर तलाई जेवरात चुरा कर फरार। पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स की M4 मोटरवे पर बड़ी कार्रवाई। मुल्जिमान से मुकाबले के बाद 5 करोड़ 46 लाख रुपए मालियत की मुनशियात बरामद। कराची में इंटर इम्तिहानात के दौरान पहली बार इम्तिहानी मराकज पर तलबा के डिजिटल हाजिरी एप्लीकेशन से किसी भी फर्द को दूसरे की जगह इम्तिहान देने पर फौरी पकड़ा जा सकेगा। कराची एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स अथॉरिटी की पहली खेप ज़मीनी रास्ते से किर्गिस्तान रवाना। 62,461 मालियत के 2,000 से ज़ायद पैकेजेस भेजे गए। हर्बल ऑयल्स, हर्बल टी, मेहंदी, क्रीम्स और साबुन बरामद। सानेहाय मचील मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी की अलमनाक दास्तान। सानेहाय मचील कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी और सियासी शऊर का लाजवाल बाब है। 30 अप्रैल 2010 को मचील में 3 बेगुना कश्मीरी भारतीय काबिज फोर्सेस के हाथों मावराए अदालत कत्ल हुए। इजरायली बहरिया ने गजा जाने वाली इमदादी कश्तियों के काफिले पर चढ़ाई कर दी। समूद फ्लोटेला मुंतजमीन के मुताबिक इजरायली फौजी स्पीड बोट्स ने कई कश्तियां रोकी। पाकिस्तान से साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी फ्लोटेला का हिस्सा। रजाकारों को घुटनों के बल बिठा दिया गया। PSL के एलिमिनेटर मैच में नई नवेली टीम हैदराबाद किंग्समैन ने मुल्तान सुल्तान्स को 8 विकेटों से शिकस्त दी। 160 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर अबूर। किंग्समैन को फाइनल तक रसाई के लिए जुमे को इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ फतह समेटना होगी। और PSL में जिद्दत के रंग। हैदराबाद किंग्समैन ने जश्न के लिए रोबोट मैदान में उतारा। मशीनी इंसान का देसी अंदाज में रक्स देखने वालों को खूब भाया।